Okay, so dear students, today I am going to start a new series of lectures which is based on coordination compounds. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it, which is all about chemistry. Please subscribe my channel. Next, in today's topic, I am going to discuss these all topics, which is introduction of what is coordination compounds, what are ligands, coordination bond, metal, calculation of oxidation state, how can we calculate the oxidation state, IUPAC nomenclature, various practice problem and some practice problem which will be solved by you. Okay. So first of all, what is coordination compounds? The coordination compounds means those compounds which have coordinate bond between metal ions and ligands. Metal ions and ligands के बीच जब coordinate bond हो, that is known as a coordination compounds. So here नया term आता है coordinate bond. What is coordinate bond? तो coordinate bond के लिए हम तीनों important bonds को differentiate कर लेते हैं, ionic, covalent और coordinate. इन तीनों में difference क्या है? ये जो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट इनमें डिफरेंस क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड में मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये जो क्लोरीन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड वेयर बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन्स ईच. But in coordinate bond, only one atom share. For example, the bond formed between ammonia and BF3. Ammonia and BF3. So here ammonia has an extra lone pair of electrons and boron is electron deficient because इसका octet अभी complete नहीं है. तो ये क्या करेगा, ammonia gives its 2 electrons to the boron. तो यहाँ पे bond तो बना, लेकिन bond में जो electrons involve है वो सिर्फ एक ही atom का involve है. दोनों electrons कौन देगा, आपका नाइट्रोजन. तो such type of bond in which only one atom shares the electrons and other atoms only accept that electron. This type of bond which is indicated by a single arrow, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां से towards the atom which are taking the electrons. तो such type of bond is known as coordinate bond where only one atom shares and other accept the electrons. And covalent means both the atoms shares the electrons. और ionic मतलब क्या होता है, complete transfer of electron. For example, Na और chlorine. Sodium and chlorine. Sodium has an electronic configuration 281 and chlorine has an electronic configuration 287. So in this, because इसका octet complete हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, that's why सोडियम एक इलेक्ट्रॉन completely ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को. So that's why सोडियम क्या बन जाएगा, Na+ because उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एंड क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, तो इट बिकम्स Cl-. अब इन दोनों आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, it is known as ionic bond. Means it involves complete transfer of electrons. It involves sharing of electrons where both the atoms shares one electron. It involves also sharing of electrons, लेकिन एक ही atom electron share करेगा, दूसरा electron accept करेगा. Okay. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने. इसके बारे में देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक होता है काउंटर आयन. कोऑर्डिनेशन स्फीयर मीन्स विच इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट. कोऑर्डिनेशन स्फीयर मीन्स इनसाइड द ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है इस पूरे को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड काउंटर आयन मीन्स आउटसाइड द ब्रैकेट. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है इट इज काउंटर आयन, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट होता है, एक होगा मेटल और दूसरा होता है लिगेंड्स. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होंगी, मेटल और लिगेंड्स. और काउंटर आयन जो है इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और इट कैन बी अ नेगेटिवली चार्ज आयन. जैसे इस केस में काउंटर आयन पॉजिटिव है, पोटेशियम प्लस, एंड इस केस में काउंटर आयन क्या, नेगेटिवली चार्ज, Cl-. तो ये पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज का भी हो सकता है काउंटर आयन. एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, अगर इसको आयनाइज कराना है तो हमेशा कैसे ब्रेक होगा, काउंटर आयन अलग और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा एक एंटाइटी बन के अलग हो. इसके अंदर के जो आयन्स है वो आयनाइज नहीं होंगे, तो सिर्फ काउंटर. अगर इसको मेरे को आयनाइज करना है तो कैसे आयनाइज होगा, 4K+ बिकॉज 4 पोटेशियम है तो ये 4 पोटेशियम अलग, प्लस FeCN6. चूंकि अब जितना चार्ज आपके पोटेशियम या काउंटर आयन में जितना टोटल चार्ज रहेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अगर आपके काउंटर आयन में 4+ है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज होगा, 4-. सिमिलरली अगर ये वाले एग्जाम्पल में देखें, ये भी कैसे ब्रेक होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग, काउंटर आयन अलग, यहाँ से ब्रेक करेंगे
तो काउंटर ये ब्रेक होगा, अभी जो पहले रहता है वो पॉजिटिव, जो बाद में रहेगा वो नेगेटिव। ये पहले है इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज एंड काउंटर आयन विल बी ए नेगेटिव चार्ज। इसमें काउंटर आयन पहले था तो वो पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी ए नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन में होता है -1, तो 3 क्लोरीन में कितने होगा टोटल -3। तो जितना इसमें माइनस उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो कैसे ब्रेक होगा, कोबाल्ट NH3 4 कितना चार्ज आएगा +3 और क्लोरीन जो अलग हो जाएगा 3-। तो ये ब्रेकिंग है क्योंकि अंदर के आयंस नहीं टूटते और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को थोड़ा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है डबल सॉल्ट वगैरह से। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो पार्ट है, जैसे स्फीयर में एक होता है मेटल और दूसरा लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं यार, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिगेंड्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे किसको, मेटल एटम्स को। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस बेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज ल्यूइस बेस। और जो मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दे आर नोन एज ल्यूइस acid, because electron pair acceptor are known as Lewis acid. So metals are Lewis acids and ligands are Lewis base because it donates electrons. Metal ligands can be positive, negative and neutral. Classification ligands, it has been classified on two bases. First on the basis of denticity, another on the basis of charge. So denticity means what, total number of donor atoms which is present in ligand. If अगर one donor atom है तो it is called monodentate. अगर दो डोनर एटम्स है तो इट इज कॉल्ड बाइडेंटेट। और इफ इट हैज डोनर एटम ग्रेटर देन 2 तो इट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट। अगर 3 है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, 5 है तो पेंटाडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट। इस तरह से 1 वाले एग्जाम्पल जैसे अमोनिया जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल थायोसाइनाइड, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, दीज आर ऑल मोनोडेंटेट बिकॉज इसमें एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन, इसमें एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन, इसमें ऑल्दो इसमें दो डोनर एटम, एक है सल्फर और एक नाइट्रोजन, पर एट अ टाइम जब वो लिगेंड्स के साथ बॉन्ड करता है, मेटल के साथ जब बॉन्ड करेगा तो एक ही डोनर एटम को यूज करता है, बिहेविंग एज अ मोनोडेंटेट। साइनाइड में भी एक ही डोनर एटम है कार्बन, तो जिसमें एक डोनर एटम हो और एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम यूज करे मेटल्स के साथ बॉन्ड करने के लिए, दैट इज नोन एज मोनोडेंटेट। और जिसमें दो डोनर एटम्स हो, फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2-डाईअमीन, फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2-डाईअमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें क्या है, दो डोनर एटम, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन, और वो एट अ टाइम दोनों डोनर एटम्स को यूज करता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सो दैट्स वाई ये किस कैटेगरी में आएगा, बाइडेंटेट की कैटेगरी में। एक और एग्जाम्पल ऑक्सलेट CO-, इसमें भी दो डोनर एटम है, ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, और ये एट अ टाइम जो है दोनों और डोनर एटम्स को यूज करता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में, दोनों डोनर एटम यूज करेगा, दैट्स वाई किस कैटेगरी में आएगा, बाइडेंटेट की कैटेगरी में। ठीक है, पॉलीडेंटेट में एग्जाम्पल है जैसे EDTA। EDTA मीन्स एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें 6 डोनर एटम्स होते हैं, एक तो होता है 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलीडेंटेट कैटेगरी में। ठीक है, नाउ चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स जिसमें चार्ज क्या होगा, माइनस, जैसे Cl-, या सारे जो हेलोजेंस है वो सब, थायोसाइनेट SCN-, आइसोथायोसाइनेट NCS-, साइनाइड हो गया, फिर ऑक्सलेट अभी देखे एक लिगेंड, फिर नाइट्राइटो लिगेंड, नाइट्रो है ये, ONO करेंगे तो नाइट्राइटो हो गया, और ऑक्साइड, सल्फाइड, दीज आर ऑल नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। पॉजिटिव मीन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम है, जैसे हाइड्रेजीनियम आयन, NH2 NH3+ हाइड्रेजीन हो गया, NO+ नाइट्रोसोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, दीज आर ऑल पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स। लिगेंड्स के चार्ज को ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूट्रल जिसमें कोई चार्ज ना हो, जैसे वाटर जिसको एक्वा बोलते हैं नॉमेनक्लेचर में, एमोनिया जिसको एमीन बोलेंगे नॉमेनक्लेचर में, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, pyridine, amine and these are all what, neutral charge ligands which does not contain any charge. amine के अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, En, ये सारा भी क्या है, न्यूट्रल, जिसमें जनरली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लोन पेयर यूज कर रहा है,
तो ये सारे क्या आएंगे, न्यूट्रल, वाटर, एमोनिया, कार्बोनिल, थाइकार्बोनिल, दीज आर ऑल फॉर न्यूट्रल विच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। ठीक, जैसे और है क्या, ट्राईअल्किल फॉस्फीन, ट्राईअल्किल फॉस्फीन, दीज आर ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स विच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। नाउ देर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स विच इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड मीन्स अभी देखा, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थायोसाइनेट और एक है आइसोथायोसाइनेट, NCS माइनस। दोनों क्या है, सेम है, एक नाइट्रोजन कार्बन सल्फर, एक नाइट्रोजन कार्बन सल्फर, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें है दो डोनर एटम्स, हैविंग टू डोनर एटम बट यूजेस ओनली वन डोनर एटम एट अ टाइम। सिर्फ एक ही डोनर एटम को यूज करेगा एक समय पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर SCN है मतलब ये सल्फर के थ्रू बॉन्ड किया है मेटल से, NCS है तो मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड किया है सल्फर मेटल से। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम को यूज करेगा मेटल से बॉन्ड करने के लिए, तो इसलिए किस कैटेगरी में आता है, मोनोडेंटेट की ही कैटेगरी में आएगा। तो सच टाइप ऑफ लिगेंड विच हैज टू डोनर एटम बट यूजेज ओनली वन एट अ टाइम एंड बिहेव एज अ मोनोडेंटेट को क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल एक और NO2 माइनस और ये है ONO माइनस, इसका भी सेम वही है, इसमें भी दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पर एक समय पे सिर्फ एक ही डोनर एटम, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन से बाइंड किया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से बाइंड किया है। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, इसमें जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एम्बीडेंटेड में हमेशा किस एटम से वो मेटल से बाइंड है, उस मेटल के उस एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर नाइट्रोजन से बाइंड है तो हाइफन ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन से बाइंड है तो हाइफन ऑक्सीजन ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू द मेटल। कितने टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स है मेटल से अटैच होते हैं, तो हमें यहाँ डोनर एटम्स कैलकुलेट करना है, लिगेंड्स नहीं, क्योंकि लिगेंड्स बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड भी हो सकते हैं। तो हमें टोटल कितने डोनर एटम्स मेटल से अटैच्ड है उनके स्ट्रक्चर में, उसको कैलकुलेट करना है, वही बराबर होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। फॉर एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल को मान लो कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे देखो सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो अगर सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, क्योंकि सारे मोनोडेंटेड है तो उसकी संख्या कितनी, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है ऑक्सलेट लिगेंड जो कि है बाइडेंटेड, मतलब इसकी डेंटिसिटी है 2। तो ऐसे वाले की कैसे करेंगे कि नंबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स है वो मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेंटिसिटी, जो भी उसकी डेंटिसिटी होगी। जैसे अगर इसी का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ नंबर कितने हैं, 3, और इसकी ऑक्सलेट की डेंटिसिटी कितनी है, 2, तो इज इक्वल्स टू 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अब इस एग्जाम्पल को फिर से देखो, ये है इथेन 1,2 डाइएमीन जिसकी डेंटिसिटी होती है 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितना नंबर में ये है मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेंटिसिटी 2 विच इज इक्वल्स टू 6, तो यही क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये इसमें सारे क्या है, मोनोडेंटेड है, तो जितना लिगेंड्स उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। ठीक, नाउ अब कैलकुलेशन करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल है। मेन हमारा बस पहला टास्क होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करो। अगर वो फाइंड आउट हो गया उसके बाद सारे लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ एमोनिया न्यूट्रल है मतलब इसका कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन में होता है -1, ये पता हो तो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज, देन सारे लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन, उससे हम इजीली जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं मेटल्स का। अब जैसे यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 0, क्योंकि कोई आसपास काउंटर आयन नहीं है जो इसको चार्ज प्रोवाइड करे, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया 0। मान लो मेटल का हम ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं X, ठीक, प्लस एमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0। क्लोरीन, एक क्लोरीन में होता है -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन में कितना होगा, -2, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू ओवरऑल जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कितना है, 0, दैट्स वाई 0, -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया प्लैटिनम का, +2। नेक्स्ट ये है, अब इसमें एग्जाम्पल में देखो यहाँ काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, जो पहला रहता है वो पॉजिटिव, जो बाद में रहेगा वो नेगेटिव। तो पहले ये फाइंड आउट करो कि काउंटर आयन में टोटल कितना चार्ज है, क्योंकि उसी का इक्वल एंड अपोजिट आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा।
तो यहाँ काउंटर आयन में टोटल कितना है, एक पोटेशियम में +1, तो 3 में कितना होगा +3। तो अगर इसमें +3 है मतलब इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा किसमें, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना हो गया -3। और ये पता चल गया। अब मान लो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, चूंकि ये बाइडेंटेड है मतलब कितना चार्ज होता है ऑक्सीडेट में -2 और 3 है, एक में -2 तो 3 में कितने हो गए -6, और ये ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, जो ओवरऑल चार्ज है -3। तो x इक्वल्स टू -3 इधर जाएगा तो +6 और यहाँ आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आयरन का +3। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज IUPAC में कैलकुलेट करने में काम आएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 चार्ज है, इजी। एक्स का कोबाल्ट का ले लो x, एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो वो हो जाएगा 0। क्लोरीन में कितना चार्ज होता है -1, तो -1 ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना है +2, तो x इक्वल्स टू +2, ये जाएगा तो +1 इक्वल्स टू कितना आ गया +3। तो कितना है आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये, इसमें भी वैसे ही पहले डिवाइड कर लो, आपके जो को काउंटर आयन है उसका पहले चार्ज निकाल लो, टोटल कितना, एक पोटेशियम में +1 तो 4 है तो कितना होगा +4। इसी का इक्वल एंड अपोजिट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा मतलब -4, ठीक, -4 हुआ। अब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जब चार्ज पता चल गया तो अब क्या निकालो, x का, मान लो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, साइनाइड, एक साइनाइड में -1 तो 6 साइनाइड में -6, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज है -4, तो x इक्वल्स टू -4 + 6, तो ये कितना आ गया +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। नेक्स्ट ये, इसमें देख लो, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है जो इसको चार्ज दे, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0। निकिल का मान लो x, कार्बनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है मतलब नो चार्ज, इसलिए +0 इक्वल्स टू 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया निकिल का 0। अब ये है थोड़ा सा अलग टाइप का जिसमें दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए, तो इसका भी सेम वैसे ही है। पहला वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें हमेशा प्लस चार्ज रहेगा और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें माइनस चार्ज रहेगा। कितना रहेगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे अगर हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे, मान लो जैसे NaCl का फॉर्मूला बनाए, इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, Na की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, और ये हम इसको अल्टरनेट, मतलब ये इसको दे दिया ये इसको दे दिया, इसलिए क्या बन जाता है NaCl। ऐसे ही बनता है फॉर्मूला। इसमें भी वैसे ही है, जैसे इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये 1 इधर चढ़ेगा लेकिन प्लस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला होता है उसमें कितना चार्ज होता है प्लस, तो ये हो गया इधर +1। यहाँ पे जो है 1 ये इधर आएगा लेकिन किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब इजी है क्योंकि यहाँ देख लो, एमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका कोई चार्ज नहीं। मान लो इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने x लिया, +0, ओवरऑल चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1, तो +1, तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले वाले सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +1। सेम उसका इस वाले में भी निकालेंगे। मान लो इस वाले सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया y, साइनाइड का कितना होता है -1, तो 2 साइनाइड का -2 इक्वल्स टू ओवरऑल स्फीयर में कितना है -1, तो y इज इक्वल्स टू -1 + 2, तो कितना आ गया +1, मतलब इस सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1। बस ये फॉर्मूला इधर देखना, पहला वाला प्लस, दूसरे वाले में हमेशा क्या रहेगा माइनस चार्ज, ठीक। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम कैसे देंगे। तो 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फीयर और भी ब्रिज वगैरह हो सकते हैं, लेकिन बेसिक 3 होता है। पहला जिसमें काउंटर आयन पहले हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले हो काउंटर आयन बाद में, या सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और उसमें कोई चार्ज हो या नो चार्ज। तो हमेशा जब भी नाम देंगे तो कहाँ से जाना, लेफ्ट टू राइट, या ऐसे समझो पॉजिटिव आयंस का पहले नाम दिया जाता है हमेशा, और जो नेगेटिव होता है उसको बाद में देंगे। तो ऑलवेज नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन फर्स्ट, या गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट में जो भी है काउंटर आयन पहले तो काउंटर आयन का नाम दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दो, कुछ नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम पहले देना पड़ेगा, है ना। डू नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ काउंटर, अगर काउंटर आयन 2, 3 है तो डाई ट्राई प्रीफिक्स कभी भी काउंटर आयन के लिए यूज नहीं करना है। कॉमन नेम यूज करना है काउंटर आयन का, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, सल्फेट है तो सल्फेट, वो उसका कॉमन नेम होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा नाम कैसे करना है, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे पहला वाला ये वाला केस है,
अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लस चार्ज, क्योंकि जो पहले होता है उसमें प्लस आता है, जो बाद में उसमें माइनस, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लस चार्ज है तो उसका नेम कैसे करोगे? सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में ही करना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स है, प्लस उसका नाम, फिर मेटल का नाम, और फिर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है ना ये। और बाद में क्लोराइड, जो भी अगर आपका काउंटर आयन है वो। लेकिन अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज है, जैसे इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। चाहे माइनस कौन सा भी, कितना भी हो, -1, -2, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर माइनस चार्ज आता है तो डिफरेंस बस ये है कि नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल सब सेम है। लेकिन यहाँ पे जो मेटल का नाम रहेगा वो लैटिन में रहेगा। लैटिन नेम अभी बताऊंगी, लैटिन नेम क्या होता है। मेटल्स का जो नाम है वो लैटिन नेम में लिखना है और उसको एंड करेंगे 8 से। जैसे मान लो अगर आपका मेटल आयरन है तो उसका लैटिन नेम होता है फेरेट, तो फेरस होगा और उसको एंड करेंगे 8 से, तो क्या बन जाएगा? पूरा फेरेट। ये जो चीज है ये प्लस वाले में नहीं करते। प्लस वाले में जो नाम है मेटल का नॉर्मल जो रहता है वही, जैसे आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे। लेकिन अगर वही क्रोमियम मेटल इस वाले में है जहां पे उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो फिर क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर माइनस आया तो मेटल विल लैटिन नेम लिखेंगे प्लस एंड विद 8। अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल जो नाम है वही और 8 विद से एंड नहीं करना है। और मेटल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में रहता है? रोमन लेटर में रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किस में रहेगा? रोमन लेटर में, ठीक है। अब मान लो अगर निगेटिव लिगेंड्स है, निगेटिव लिगेंड्स अगर है तो हमेशा जो लिगेंड्स के नाम के साथ एंड में जो ई आता है वो ओ से एंड होगा। जैसे मान लो क्लोराइड है तो ये ई एंड होगा किससे? ओ से, तो ये हो जाएगा क्लोरिडो। साइनाइड है तो साइनाइडो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। तो ई एंड्स विद ओ किस केस में? निगेटिव लिगेंड्स के केस में। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है तो ईएम से एंड होगा। जैसे हाइड्रेजीनियम, मान लो ये NH2 NH3 प्लस, हाइड्रेजिन बोलते हैं इसको, लेकिन ईएम से एंड होगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रेजीनियम। तो ये हो जाएगा हाइड्रेजीनियम, ठीक है। वैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ये सब। न्यूट्रल लिगेंड्स अगर है तो इसका कुछ लिगेंड्स का स्पेसिफिक नेम है। जैसे हम नॉर्मली इसको एमोनिया बोलते हैं, लेकिन इसमें नेम करेंगे तो क्या बोलेंगे? एमीन। इसको वाटर बोलते हैं, लेकिन इसमें नेम करेंगे तो क्या होगा? एक्वा। बाकी सबका कॉमन नेम कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, पिरिडीन, वही नेम जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। अगर आप में एम्बीडेंटेन लिगेंड्स आया, एम्बीडेंटेन लिगेंड्स में हमेशा पहले भी बताया कि जिस एटम से ये जुड़ा रहेगा उस एटम्स को सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब एम्बीडेंटेन लिगेंड्स का जो नॉर्मल नेम है वो नॉर्मल नेम लिखेंगे, फिर हाइफन के बाद। जैसे मान लो NO2 है और नाइट्रोजन से जुड़ा है तो कैसे लिखेंगे? इसका जो नॉर्मल नेम पहले नाइट्राइटो और हाइफन, नाइट्रोजन से जुड़ा है इसे नाइट्रोजन डैश, और जो भी उसका नाम आगे पीछे आएगा वो, ठीक। अगर मान लो SCN माइनस है, ठीक है, SCN है, सल्फर से जुड़ा है, तो पहले उसका जो नॉर्म है वही लिखेंगे, मतलब थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो हाइफन, कहाँ से जुड़ा? सल्फर से, इसलिए सल्फर डैश, कैपिटल में ना, कैपिटल में। ऑर्गेनिक लिगेंड्स अगर है, ऑर्गेनिक जैसे मैथिल, एथिल, तो जो उसका नाम हम नॉर्मली बोलते हैं मैथिल, एथिल, वही इसमें भी आएगा ऑर्गेनिक लिगेंड्स, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड्स है तो हमेशा अल्फाबेटिकली ए को पहले, बी को बाद में, सी को बाद में, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करना है। ABC वाला जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वही फॉलो होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स को कैसे बताते हैं तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। नॉर्मल अगर लिगेंड्स है तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्स यूज करते हैं। मोनो जनरली नहीं यूज होता, डाई, ट्राई, टेट्रा ही यूज होगा। और ये जो प्रीफिक्स है वो कब यूज होगा? जब आपका लिगेंड खुद न्यूमेरिकली सब्सटीट्यूटेड हो। अगर आपका लिगेंड खुद न्यूमेरिकली सब्सटीट्यूटेड है, मतलब उसमें खुद नंबर है, जैसे EN को हम क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डायमीन, तो 1,2 वो खुद न्यूमेरिकली सब्सटीट्यूटेड है। तो ऐसे केसेस में क्या यूज करेंगे? ये वाले प्रीफिक्सेस, बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, ये सब। ब्रिजिंग लिगेंड्स अगर है तो ब्रिजिंग लिगेंड्स में नाम जो लिगेंड्स है वही रहेगा, लेकिन उसके सामने प्रीफिक्स लगा देते हैं, क्या? म्यू। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बाद में लगाया तो इसमें पहले लगाएंगे जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है। जैसे मान लो OH जो है, दो मेटल के एटम के बीच में ब्रिज्ड है, तो जो भी आगे पीछे नाम रहेगा उसके पहले म्यू डैश हाइड्रोक्सो। तो मतलब इसमें ये जो म्यू प्रीफिक्स है उसको यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि जो आपका लिगेंड है वो ब्रिज्ड है बिटवीन टू मेटल एटम्स, ठीक। ये लिस्ट है
उन मेटल एटम्स की जो जिनका लैटिन नेम और इंग्लिश नेम अलग है। ये इसका कॉमन नेम्स, जैसे कॉपर को हम कॉपर बोलते हैं, एसएन को टिन, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? कॉपर का क्यूप्रीन, एसएन का स्टेनेट, लिड का प्लम्बेट, आयरन का फेरेट, गोल्ड का ऑरेट और सिल्वर का आर्जेंटीन। बाकी जो सारे मेटल है उनका लैटिन नेम और इंग्लिश नेम दोनों सेम है, बस यही कुछ मेटल्स है जिनका लैटिन नेम डिफरेंट है और कॉमन नेम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। और ये कब यूज होगा? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज आए, प्लस में ये वाले नेम्स यूज होंगे। ठीक, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां नॉमेनक्लेचर में, तो सबसे पहले ये है, नामिंग करने समय मैंने बताया था कि प्लस वाला का जो नाम है उसको पहले लिखेंगे या गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो प्लस वाले का मतलब पहले क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले, और इसमें भी किसको पहले लिख दे? लिगेंड्स को। लिगेंड्स यहाँ पे दो है, एक है एमीन, एक है वाटर। तो ये एमीन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस और ये वाटर, ये हो जाएगा एक्वा। तो अब पहला अल्फाबेट तो दोनों का सेम है, दूसरा देखो तो ये एक्वा जो है इसमें क्यू पे देगा, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3। और लास्ट में आपको काउंटर आयन लिखना है और उसमें नंबर इंडिकेट नहीं करना है। क्लोरीन 3 है तब भी सिर्फ क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अब इस वाले का नाम कैसे करते हैं? सेम वैसी, पॉजिटिव वाले का नाम पहले, फिर नेगेटिव वाले का, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब इसमें पॉजिटिव भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, नेगेटिव भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो नॉर्मल जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, मतलब लिगेंड्स का पहले, तो ये हो जाएगा डाई अमीन सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पीछे निकाला था, 1 आया था। उसके बाद इसमें भी वही डाई, बिकॉज 2 है तो डाई साइनाइडो, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है तो एंड्स विथ ओ। लेकिन इस वाले में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज आएगा। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस आए तो मेटल को किससे एंड करते हैं? लैटिन नेम लिखेंगे और एट से, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 1। फिर ये वाला, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, 0 है, कोई काउंटर एंड नहीं है, तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखना है। 3 लिगेंड्स इसमें एमीन, क्लोरीन और नाइट्रो। अल्फाबेटिकली पहले एमीन आएगा, तो क्या हो जाएगा? डाई एमीन, देन क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरिडो, फिर नाइट्राइटो। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, एम्बिडेंटेन है तो इसको हमें इंडिकेट करना पड़ेगा नाइट्रोजन। लास्ट में प्लैटिनम, चूंकि इसमें माइनस चार्ज नहीं है तो इसमें नॉर्मल जो चार्ज रहेगा, नाम रहेगा वही प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? काउंट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा 2। ठीक, नेक्स्ट है ये, इसको भी सेम वैसे ही बांटेंगे, यहाँ प्लस माइनस, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। नेम इंडिकेट नहीं करना है, नंबर इंडिकेट नहीं करना है। फिर माइनस वाले का, तो माइनस वाले में भी पहले क्या? नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो ट्राई है इसलिए ट्राई। ऑक्सीलेटो निगेटिव है इसलिए एंड्स विथ ओ, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज आया इसलिए ये किससे एंड होगा? क्रोमेट। और चूंकि ये इसका लैटिन नेम इंग्लिश नेम दोनों सेम है, दैट्स वाई क्रोमेट। एंड इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, आई थिंक +3 आएगा। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट फिर से वही बांटते जाओ, प्लस माइनस। ठीक, प्लस वाले का नाम पहले, जिसमें लिगेंड्स का पहले क्लोरिडो है, ये इथेन है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? क्लोरिडो वाले का। तो ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो, और ये न्यूमेरिकली सब्स्टिट्यूट है, इसमें प्रीफिक्स कौन सा लगाएंगे? बिस इथेन 1,2 डाई एमीन ब्रैकेट क्लोज। कोबाल्ट, चूंकि प्लस है तो नॉर्मल नेम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 आएगा, कैलकुलेट करके देखना। और क्लोरीन है कॉमन नेम तो उसका हो जाएगा क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट इसको भी बांटो 2 में, प्लस माइनस, प्लस का नाम पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले, 2 लिगेंड्स है, अरेंज इट इन अल्फाबेटिकली, पहले ये आएगा तो क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन। ये कौन सा लिगेंड है? कार्बोनेट, निगेटिव है इसलिए एंड्स विथ ओ, तो कार्बोनेटो। कोबाल्ट पॉजिटिव ही है इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा नाम, तो नॉर्मल जो आएगा वही कोबाल्ट। कंटिन्यू में लिखना, ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ बट ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? आई थिंक इसका +3 आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? काउंटर आयन विच इज क्लोराइड। ठीक, फिर इसका बांटो 2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का पहले तो काउंटर आयन है, नो नंबर, मरकरी डायरेक्ट। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ लिगेंड्स विच इज टेट्रा, थायोसाइनेट, और निगेटिव है इसलिए थायोसाइनेटो।
सल्फर से जुड़ा है इसलिए हमें ऐसे सल्फर से इंडिकेट करना पड़ेगा। और चूंकि कोऑर्डिनेशन से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, आई थिंक +2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। फिर बांटो प्लस माइनस, प्लस कितना होगा इसमें टोटल +2 प्लस, इसमें टोटल हो जाएगा 2 माइनस। तो प्लस का नाम पहले, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। फिर इसमें पहले लिगेंड्स का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो। और चूंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आया था इसलिए इट एंड्स विद 8, तो ये हो जाएगा पहले डेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसका, 2। तो ये हो गया इसका नाम। तो हमेशा पॉजिटिव का नाम पहले लिखो फिर निगेटिव का, चाहे वो काउंटर आयन हो और या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसमें पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस है तो मेटल का कौन सा नाम लिखेंगे, लैटिन नेम, और एंड्स विद 8, ATE 8। ये 3 क्वेश्चंस है, ये आपके लिए है, इसको प्रैक्टिस करो और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज इसके आंसर जरूर बताओ, ठीक। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि आपको नाम दे दिया है और इसका आपको फॉर्मूला बनाना है। तो हमेशा जैसे उल्टा चलना है बस। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्लस का नाम पहले और माइनस का बाद में, ठीक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो वो अगर मान लो यहाँ पे नाम ये पहले दिया है, मतलब क्या कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड होगा। और क्लोराइड जो कि काउंटर आयन बाद में दिया, मतलब काउंटर आयन जो है वो बाद में होगा। तो अब इसमें भी सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, ठीक, क्योंकि ये पहले तो पहले से स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। हमेशा पहले मेटल को लिख लो, मेटल क्या है, कोबाल्ट, तो ये हो गया आपका कोबाल्ट। फिर लिगेंड्स को अरेंज करो, टेट्रा एमीन मतलब 4 आपके एमीन्स होंगे, तो ये हो जाएगा NH3 4। डाई एक्वा मतलब डाई मीन्स 2, 2 क्या है, वाटर, तो ये हो जाएगा H2O2। क्लोरीन, अब ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन एक ही हो, क्योंकि हम IUPAC में इसके नंबर को इंडिकेट नहीं करते। तो कितने क्लोरीन होंगे वो कैसे डिटरमाइन होगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से और लिगेंड से। ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का +3, और चूंकि दोनों लिगेंड्स न्यूट्रल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा। और जितना इसमें प्लस उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा आपके लिगेंड्स में। मतलब कितने लिगेंड्स होंगे, 3, क्योंकि तभी यहाँ पे 3 माइनस आएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओवरऑल कोबाल्ट NH3 4 एक्वा H2O ट्वाइस Cl3, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो काउंटर आयन को पहले लिखा है, मतलब आपका काउंटर आयन पहले है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो। आपके में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में निकलेट दिया है, मतलब मेटल को पहले लिख लो, निकल मेटल है। टेट्रा साइनाइडो सिर्फ एक ही लिगेंड है जो कि 4 है, तो ये हो जाएगा CN4। अब कितने पोटेशियम होंगे डिटरमाइन होगा किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट और आपके लिगेंड से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, ठीक है। तो ये अगर 3 है, साइनाइड में -1 चार्ज होता है, तो ये -4। तो अगर ये 3 -4 ओवरऑल क्या -1, तो मतलब यहाँ पे आपका चार्ज कितना आएगा, -1। तो आपके मेटल में चार्ज कितना होगा, +1। तो यही इसका फॉर्मूला है, नंबर एक ही है, मतलब पोटेशियम निकेल टेट्रा साइनाइड, मतलब 4 ही साइनाइड होंगे और पोटेशियम एक ही होगा, ठीक। ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखो यहाँ पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है और आपका जो काउंटर आयन है वो बाद में है। तो क्लोरीन पहले लिख लो। इसमें मेटल कौन सा है, क्रोमियम, तो क्रोमियम को लिख लिया। और एक ही लिगेंड है जो कि कौन सा, इथेन 1,2 डायमीन, और कितना है, ट्रेस मतलब 3, तो ये हो जाएगा EN3। अब क्लोरीन कितना होगा, चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3 है वही इसके ऊपर चार्ज आएगा और उसका इक्वल एंड अपोजिट क्लोरीन पे, मतलब क्लोरीन कितना होगा, 3। ब्रैकेट ज्यादा बड़ा हो गया, इसको इतना कर लो और ये हो जाएगा Cl3। नेक्स्ट इस वाले में देखो, इसमें आपको कोई काउंटर आयन नहीं दिया है, सारा एक साथ लिखा हुआ है, कोई काउंटर आयन नहीं है। तो पहले सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ। मेटल है आपका प्लैटिनम, लिगेंड्स अरेंज करो, एमीन, इसके सामने कोई प्रीफिक्स नहीं है, मतलब एमीन एक ही होगा, तो ये एक एमीन। ब्रोमीडो कोई प्रीफिक्स नहीं है, मतलब एक ही होगा ब्रोमीडो। फिर क्लोरिडो कोई प्रीफिक्स नहीं है, मतलब एक ही क्लोरिडो। नाइट्राइटो नाइट्रोजन से जुड़ा है, मतलब कौन सा लिगेंड होगा, NO2। ओवरऑल चार्ज कैसे डिटरमाइन है कि नहीं पहले ये देख लो। आपके मेटल प्लैटिनम में ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, दिस इज न्यूट्रल, -1 ब्रोमीन का, -1 क्लोरीन का, नाइट्रो में भी होता है -1, तो कितना आया, 2 - 1
ये हो जाएगा 2 -3, मतलब ओवरऑल -1 चार्ज। मतलब आपके प्लैटिनम में -1 होगा, तभी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 2। और ये ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें देखो एंड किया है 8 से, 8 से तभी एंड होता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज हो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में हम आइसोमेरिस में देखेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। थैंक यू।